Shri N.K. Premchandran ji. Thank you very much, Chairman Sir. I would like to raise a very serious matter of urgent concern in which the involvement of the Ministry of Labour is required, that is regarding the Employees Pension Scheme 1995. Honourable Chairman, it may kindly see, on 4th November 2022, the Honourable Supreme Court has delivered a judgment in respect of Employees Pension Scheme 1995 regarding the higher pension on the basis of actual salary. The matter was heard by various High Courts of India, Kerala High Court, Rajasthan High Court, Delhi High Court, and delivered their judgments. Against the judgments of these various High Courts, Government of India, Labour Ministry and Employees Provident Fund Organisation has preferred a special leave appeal, and that appeal has been rejected and dismissed by the learned Supreme Court, and subsequently review petition was filed, and the review petition was further allowed and delivered a detailed judgment. Sir, the judgment is affecting millions of workers in the country, those who are in the service and also those who are out of service who have already opted pension. In such a situation, it is having series of ramifications are there as far as the judgment is concerned. So my point is, as per the judgment of 2022, that is Employees Pension Scheme, those who have not opted for higher pension on the basis of the actual salary, they are entitled to opt for the pension within 4 months from the date of the judgment. So the date of judgment was on 4/11/2022. But it is quite unfortunate to note that the Employees Provident Fund Organisation has not taken any step so as to implement the order of the Supreme Court judgment. That will be adversely affecting the poor workers. And another point is, those who have already returned prior to 1/9/2014, they are not entitled to for opting higher pension. But at the same time, sir, 1 second. But at the same time, the R.C. Gupta judgment is approved and ratified in the judgment. So there is an ambiguity as far as the Employees Pension Scheme is concerned. So my point is, the Government of India should come out with a clear statement as far as the implementation of the Supreme Court judgment regarding implementation of the order, as well as those who come out with a statement for the implementation of the judgment at the earliest, so as to protect the interests of the millions of workers. Thank you very much. नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 के जितने भी मेरे पेंशनर मेरे भाई देख रहे हैं, दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रकार से जो है सांसद महोदय एन.के. प्रेमचंद्रन जी ने कई बार जो है राज्यसभा लोकसभा में अपना वक्तव्य रखा है। दोस्तों इस प्रकार से उन्होंने हर बार सरकार से सवाल किया है कि ईपीएस 95 के पेंशनरों के बारे में कब ध्यान दिया जाएगा। उसी कड़ी में दोस्तों आप लोगों को मैंने सुप्रिया सुले जी के बारे में भी बताया था, और वो भी दोस्तों एक बार नहीं कई बार जो है खुले मंचों से भी इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि ईपीएस 95 पेंशनरों का जो उनके हक का पैसा है वो उनको मिलना चाहिए। और दोस्तों सुप्रिया सुले जी के बाद नवनीत राणा जी ने भी दोस्तों इस बात को उठाया था। ये भी जल्द वीडियो आप लोगों को पोस्ट के माध्यम से मिलेगी। और एन.के. प्रेमचंद्रन जी ने अभी हाल ही में भी दोस्तों इस बात का जिक्र किया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो ये सांसद महोदय लोग जो हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इन लोगों का सपोर्ट किया जाए। बिना इन लोगों के सपोर्ट को मिनिमम पेंशन को हम नहीं बढ़ा सकते। और दोस्तों जो हमारी मांगे हैं, 4 प्रमुख मांगे थी दोस्तों, इसके बारे में भी जब तक ये लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक गवर्नमेंट सुनने वाली नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता चलना चाहिए विपक्ष कितना कड़े रुख से उनसे सवाल कर रहा है। और आए दिन में दोस्तों बुजुर्ग पेंशनर ने ये भी हमसे गुस्सा होंगे, तभी जाके जो है सरकार की आंखें खुलेंगी, नहीं तो नहीं। अब हमें बस एक ही रास्ता हमारे पास बचता है कि विपक्ष का हम साथ लें। विपक्ष का जब तक साथ नहीं लेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि पक्ष के नेता तो काम कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ आश्वासन के लिए हमसे बात कर लेते हैं, बैठते हैं, बात कर लेते हैं। कभी आधिकारिक बयान भी दिया इन लोगों ने। आधिकारिक बयान दिया तो कोई रिकॉर्ड में मौजूद है? देवेंद्र फडणवीस जी भी जब सीएम नहीं बने थे उसके पहले मुलाकात करी, उसके बाद भी उनको मुलाकात करना चाहिए ना। एक बार हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों से बात करनी चाहिए थी। अब तो सत्ता में आ गए, अब कब पूछेंगे सवाल? बजट का संशोधन करना था, बजट का संशोधन भी हो गया, बजट के बाद भी कोई सवाल जिक्र नहीं है। बजट में हमारे प्रावधानों का कहीं बात किया गया? कहीं पर भी नहीं किया गया। सरेआम जो है हम हर बार हमें झूठ और सिर्फ झूठ बताया गया है। तो इसलिए ईपीएस 95 पेंशनरों का कर्तव्य बनता है कि विपक्ष को साथ में लेकर सरकार को घेरें, तब जाके कहीं काम बनेगा। नहीं तो इस प्रकार से काम बनने वाला नहीं है अगर हम मोदी जी के चमचे बने फिरे रहेंगे तो। क्योंकि अब समय गया कि सरकार के
पर विश्वास रख के आंख मूंद के बैठे रहो। धीरे धीरे हमारा 10 साल गुजर गया। अगर हम एक पक्ष के पीछे भी लगे रहते ना, अगर एक पक्ष को सपोर्ट किए होते ना, तो शायद हमारा काम हो भी जाता। तो इसलिए अब हमें अपने कर्तव्यों से हटके जो है काम करना है। ये नहीं कि हम सरकार से ही काम करवा सकते, नहीं सरकार से करवाएंगे, विपक्ष से करवाएंगे। ईपीएस 95 पेंशनरों की कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है, उनकी फैमिली भी 78 लाख तो इस प्रकार से गिने जाते हैं, 78 लाख पेंशनर्स। उसके बाद उनकी फैमिली है, एक एक फैमिली में 3-3 अगर लोग जोड़ लो तो भी सोचो कितनी बड़ी फैमिली होती है। और डिवाइड कर दो 78 लाख से, फिर पता चलेगा कि किस प्रकार से जनसंख्या क्या महत्व रखते हैं, कितने परसेंटेज हमारे वोटर्स हैं। तो ये तो वोट की ताकत जब तक सरकार को पता नहीं चलेगी तब तक हमारा जो है मिनिमम पेंशन बढ़ने वाला नहीं है। और वोट का ताकत अब हमें दिखाना होगा। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आ जाए उसके पहले बड़ी बड़ी बातें कर दी जाए, जब चुनाव आता है तो बात को निरस्त कर दिया जाता है। अब देख लो किसको देना है, क्या करना है, इस प्रकार की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा कोई पक्ष का उठता है, एनएससी का कोई उठता है सदस्य, तो आप उसको सपोर्ट करिए, खुले मंचों से उसको सपोर्ट करिए। और अगर उसमें से कोई नहीं उठता है तो फिर हमें विपक्ष को चुनना होगा, विपक्ष से बात करनी होगी। हम यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐसे वोट दिलवाएंगे। और हमारा जो काम है मिनिमम पेंशन का, ये आपके माथे है। आप सरकार से सवाल करो, हर जगह सरकार को घेरो इस बात को ले करके, तब जाके हमारा काम बनने वाला है। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से या मोदी जी को देखने से काम हमारा नहीं होगा। क्योंकि मनसुख मांडविया जी ने भी 2 बार आश्वासन दे दिया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2 बार आश्वासन दे दिया कि बजट में आपका प्रावधान कर दिया जाएगा। लेकिन बजट में प्रावधान अभी तक क्यों नहीं किया गया? बजट में तो कुछ एक शब्द नहीं बोला गया ईपीएस 95 पेंशनरों के बारे में। और नहीं तो अफवाहें खबर चलाई जा रही हैं, बहुत सारे यूट्यूबर अफवाह चला रहे हैं।